गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हम लोग ने अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया है दैट पावर शेयरिंग बिटवीन द कंट्री बेल्जियम एंड श्रीलंका and how these two countries they have solved the problem of power sharing. We have seen that Belgium, that country has very beautifully, they have solved the problems. They have considered the importance of minority as well as majority. So they have avoided, what they have avoided, they have avoided war. बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि उन्होंने वॉर को अवॉइड किया बाय गिविंग अ सिंपल पावर शेयरिंग। बट वहीं पे हम लोग ने क्या देखा, श्रीलंका के अंदर दैट कंट्री दे इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटीज एंड दे रूल्ड बेस्ड ऑन मेजोरिटी, एंड फॉर दैट रीजंस व्हाट दे हैपन इन द कंट्री, वॉर हैपन, दैट वाज अ सिविल वॉर and which destroyed the political and the economical development of the country. So from these two stories, it's clear that power sharing is important to run the country smoothly and functions, developments, and most important for the welfare of the people. Now we will move toward that why power sharing is important. So before that, there was one picture over here. You can see that in the car there's two steering. Now what does it means? What we have discussed right now, that the country Belgium and Sri Lanka, it's just giving and indicating toward that. The cartoons at the left refers to the problem of running the Germans grand coalitions government, जहाँ पे जर्मन्स में जिस तरह से गवर्नमेंट्स रन कर रही है. Coalition government means when the single majority are unable to, when the single party when unable to get the majority. So what they have done, they join with the near smaller party to form the coalition government so that they can get the majority. तो उसके बाद वो क्या करेंगे, easily they can run the country, they have the power to control the government. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी जर्मन्स की, they are the coalition government includes two major parties of the country. तो इनका नाम क्या था, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दो नाम है. सो द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली राइवल्स टू ईच अदर. इन दोनों ने हाथ तो मिला लिया कंट्री को रन करने के लिए, लेकिन देखा जाए कहा गया दिस टू आर द राइवल पार्टीज, जो सिर्फ आज नहीं, इट indicates the history that they are the rival. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own in the elections 2005. तो इनको मजबूर होके इन दोनों ने अपने आप में हाथ मिलाया ताकि वो एक गवर्नमेंट बना ले, कोलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली, जिसको हिंदी में कहा जाती है मिली जुली सरकार. तो इन्होंने तो फॉर्म, कुछ था नहीं इनके पास ऑप्शन, तो दे हैव get that coalition's government formed. But problem is they take divert always positions on several policy made. Whatever they are taking decisions, they both are always in divert positions. Means if they want to go left, the other will go to the right. So what will happen in this way, the country cannot run, a government cannot run. So they take divert positions on several political or policy matters but still jointly run the government. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट रन कर रहे हैं क्योंकि उनका ऑप्शंस यही कुछ नहीं है. इनको अगर नहीं जाना है तो फिर दे हैव टू क्विट, उनको क्विट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से ये इंडिकेट कर रहा है. तो यहाँ पे आप इसको देख के समझ सकते हैं हाउ, अगर ऐसा होता है तो किस सिचुएशंस में क्या हो सकता है देश का. ठीक है, तो अब हम लोग मूव करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. दिस इज आवर सब टॉपिक टुडे.
with the examples we have already get the clear idea of power sharing, why power sharing is important. So with this again a new topic, it will be more easily understood for you people. Now thus two different sets of reasons can be given in the favor of power sharing. Now we can see that the question is over here. Okay, so it means one question is already been, and it can easily be have the answers over here. So this is also one questions in the if we move or say that it is the internal questions. There's two different sets यहाँ पे examples के through, two examples के with the help of examples, two reasons are already been given and we will discuss over here. Firstly, power sharing is good. तो सबसे यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया, पावर शेयरिंग क्या है, ये बहुत अच्छा है, गुड है. पावर शेयरिंग इज गुड. व्हाई? बिकॉज it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. ये important है कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं, यस करते हैं ना, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि उनके बीच की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी, कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएगा. किनके बीच में? जितने सारे सोशल ग्रुप्स है, जितने सारे कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो मतलब वॉर हम लोग क्या अवॉइड करेंगे? वी विल अवॉइड द वॉर, जो श्रीलंका ने अगर चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, बट उन्होंने अवॉइड नहीं किया. तो इसी तरह से अ वेरी सिंपल फैक्ट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स. बिकॉज अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करता है यहाँ पे डिटेल्स में दिया जाएगा, क्योंकि ये सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है धीरे धीरे क्या क्रिएट करता है? वायलेंस क्रिएट करता है, और ये वायलेंस ही धीरे धीरे कर देगा वॉर के थ्रू, वॉर की तरफ. तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू जिस तरह से मूव करेगा वायलेंस एंड मूव विल टू द वॉर. तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है. तो इसीलिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अगर देश के अंदर वायलेंस होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो देश के जो अपने लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इन्हीं के बीच में फंसे रहेंगे. तो देश के लिए क्या करेंगे? समय कब मिलेगा कि वो देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए उनके बारे में सोचे. पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम पावर शेयरिंग कर देते सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी अपने काम करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी देश के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी. बस उनकी है कि वो अब डेवलपमेंट के थ्रू और डेवलपमेंट में ही ध्यान दें. तो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो ये हमने देखा एक रीजंस में. नाउ इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक एन attractive options in the short terms. तो यहाँ पे देखो हमने वन रीजंस कंप्लीट किया है ना. तो यहाँ पे हमने वन रीजंस में बहुत सिंपल तरीके से बता दिया गया पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंस है. पावर शेयरिंग गुड है, इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स खत्म होती है सोशल ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि हमेशा कन्फ्लिक्ट्स क्या करेगी, वायलेंस क्रिएट करती है, और वायलेंस क्रिएट करेगी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कंट्री के अंदर, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री. तो ये हो गया हमारा नंबर वन. नाउ उसके बाद आता है कि इम्पोजिंग द विल, क्योंकि हमने श्रीलंका का देखा था तो वो भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर. तो इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी, वहाँ पे मेजोरिटी के बेस पर उन्होंने अपनी हुकूमत की थी. तो मेजोरिटी कम्युनिटीज़ ने अपना विल इम्पोज किया था कि हम ज़्यादा हम अपने रूल करेंगे. तो यहाँ पे देखने में लगता है लेकिन अट्रैक्टिव, ठीक है, लेकिन ये कितने समय तक चलेगा? इट विल रन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए. बट इन द लॉन्ग टर्म इट विल नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशंस, क्योंकि यहाँ के इसमें यूनिटी नहीं है देश के अंदर, क्योंकि यहाँ पे किसको इग्नोर किया था, माइनॉरिटीज़ को इग्नोर किया है ना. तो इस तरह से कैसे चलेगा, यूनिटी नहीं बनेगी देश की. तो यहाँ पे इग्नोरेंस किया गया था माइनॉरिटीज़ को. तो हाउ विल दे विल यूनाइटेडली
move toward for the development of the country, because they are having the problems, because they are not been taken amongst them, they are not giving any opportunities. तो इस तरह से ये देश को कभी भी एक नहीं करता है. भले ही वो मेजोरिटी अगर वो रूल करना चाहती है, अट्रैक्टिव लगती है, बट वो वेरी शॉर्ट टर्म्स के लिए, लॉन्ग टर्म्स में नहीं होती है, क्योंकि इट विल अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशंस. Tyranny of the majority is not just an oppressive for the minorities, it often bring ruins to the majority as well. कहा गया टायरनिस जो है अपनी पावर दिखाना कि नहीं हम हुकूमत करेंगे, हम मेजोरिटी पे है, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी क्रूरता जो होती है वो दिखाने के लिए किसके ऊपर? कमज़ोर कौन था? माइनॉरिटीज़. इससे वो अपना कुछ अच्छा नहीं दिखा रहे, बल्कि वो अपने ही लिए बुरा ही कर रहे हैं. इससे क्या होगा? माइनॉरिटीज़ का तो बुरा हो रहा है, लेकिन साथ साथ उनसे ज़्यादा बुरा वो अपने लिए भी करेंगे, क्योंकि इट विल ब्रिंग टोटली द रूइंस टू द मेजोरिटी एज वेल, बिकॉज इट विल टोटली रूइन देयर डेवलपमेंट्स. जो हमने श्रीलंका का देखा है एक लिविंग एग्जाम्पल, हाउ दे हैव डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो दिस इज हाउ it's very important that by giving a simple power we will able to avoid this type of situations. So there is a second deeper reasons why power sharing is good for democracy. क्यों? क्योंकि अगर हम शेयरिंग करते हैं तो हम ये सब चीज़ों से बच जाते हैं जो हमने देखा रूइंस किस तरह से हो रही है. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे आ रहा है उसकी एक्चुअल मीनिंग बताया जा रहा है कि पावर शेयरिंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या है. ये कहा गया स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अब डेमोक्रेसी बोलते हो दैट मीन्स पावर्स ऑफ पीपल. पीपल्स पावर हम बोलते हैं ना, पीपल्स पावर, पीपल्स गवर्नमेंट. डेमो मीन्स पीपल्स गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जब हमने ऑल द पीपल्स आर नॉट बीन टेकन, अगर हमने सबको नहीं लिया है ना, किसी को अलग कर दिया कि नहीं यू शुड गो आउटसाइड बिकॉज यू आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर टीम, तो डेमो मीन्स जब पावर हमने किसी को नहीं दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा. इसका मतलब हमें इसे भी लेना पड़ेगा अपने साथ टीम वर्क में, तब हम मानेंगे कि हम डेमोक्रेटिक हैं. तो इसी तरह से पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. तो हमने क्या देखा सेकंड वाले के अंदर कि सेकंड में बहुत ही डीपर मीनिंग्स बता दिया गया है कि पावर शेयरिंग को क्या बताया कि स्पिरिट है. ये क्या है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. जिस तरह से आत्मा कहा जाता है इंसान के अंदर, अगर आत्मा निकल गई तो फिर इंसान वो उसकी इम्पोर्टेंस वो कुछ नहीं रहा, वो मर गया मान लो. तो इसी तरह डेमोक्रेसी में अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं, अगर हम सबके बारे में नहीं सोचते, सबको इम्पोर्टेंस नहीं देखते, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रहता है. तो इसीलिए इसको पावर शेयरिंग को बहुत ही अच्छे तरह से बता दिया दैट इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. कि है आत्मा डेमोक्रेसी की. अगर आपने शेयरिंग नहीं की, पावर्स अपने हाथ में रखा, मतलब कि हमारे देश की पॉपुलेशन में अगर एक ग्रुप जो मेजोरिटी अगर वो रूल करना शुरू कर दे, तो माइनॉरिटीज में क्या हो जाएगी, फिर से वही चीज़ शुरू होगी जो श्रीलंका के साथ हुई थी. तो इससे बेटर है कि हम क्या करें, हम अपनाएं किसके साथ? बेल्जियम जैसा अपनाएं. बेल्जियम में जिस तरह से काम किया था. तो पावर शेयरिंग अगर हम करते हैं, अगर माइनॉरिटीज भी मानती है और मेजोरिटी भी माइनॉरिटीज को मानती है, तो पावर शेयरिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. और हम जहाँ सबसे पहले कहते हैं दैट वी आर डेमोक्रेटिक, कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है पावर शेयरिंग ही करना, क्योंकि पावर मीन्स पीपल्स पावर. तो यहाँ पे पीपल्स पावर, तो पीपल शुड हैव द पावर. तो इसके लिए इसीलिए बहुत ही सिंपल तरीके से कहा दैट डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग एक क्या है, वो स्पिरिट है ऑफ डेमोक्रेसी. सो द डेमोक्रेटिक रूल जो होता है, द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट एक्सरसाइजेस एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स. तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर दिया गया डेमोक्रेटिक रूल्स क्या होती है. इन्वॉल्व्स क्या करता है? पावर शेयरिंग करता है. किसके साथ? विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जिसके साथ वो पावर शेयरिंग, जिसको उन्होंने चुना था जो एक पावर को लेके काम करेंगे, और किसके लिए करेंगे? जो वहाँ पे जिसके माध्यम से वो खड़े हुए थे, लोगों ने उनको चुना था, उनके लिए. टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, जनता दोनों के लिए. पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड. साथ साथ जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं तो पीपल हैव द राइट्स कि वो जनता से भी पूछे
कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या सोचते हैं, किस चीज़ों पे उनका डिमांड है, ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, कि कैसे वो अपनी गवर्नमेंट को और अच्छा करे, कैसे वो रूल करे और अच्छे से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो इसी तरह से वंस अगेन देख लो एक बार, का डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज, जो अफेक्टेड है, जो एक्सरसाइज पावर्स को लेके, क्योंकि जनता ने उनको पावर दिया था, उनको चूज किया था, और वो जहाँ से खड़े हुए थे वो उनके लिए ही रूल करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, जो उनके साथ। तो इसी तरह से साथ साथ ये भी है कि जनता से कंसल्ट भी करना चाहिए कि हाँ वो अपनी पावर शेयरिंग, जो पावर जो गवर्न कर रहे हैं, किस तरह से और करे, और अच्छा कैसे करे, इफेक्टिव कैसे करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाती है। सो द लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स लीगलाइज्ड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट्स रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है, रूल्स फॉलो करती है, ठीक है ना। लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन acquire a stake in the system, एक जगह मिलती है उसको जहाँ पे वो उसके थ्रू पार्टिसिपेट करता है इन द, दैट इज इफ द पर्सन want to be elected in the elections he can get the chance। तो इसी तरह से माध्यम बनाया गया है, उसके थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सबके लिए होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी के पास है तो मेजोरिटी करेगा, माइनॉरिटीज नहीं करेगा, या माइनॉरिटीज है तो मेजोरिटी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सभी के लिए होना चाहिए। सो द लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन इजिली अक्वायर, जो पोजीशन चाहती है सब गवर्नमेंट्स के थ्रू, गवर्नमेंट में रूल करना चाहती है, गवर्नमेंट से पूछना चाहती है, ये सब के लिए वहाँ पे पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नंबर 2 हैज़ अ डीपर मीनिंग। नंबर 1 तो हमने देखा कि पावर शेयरिंग करने से क्या होती है, सिंपल फैक्ट थी, पावर शेयरिंग हम करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेजोरिटीज अगर रूल करना चाहती है तो वो शॉर्ट टर्म में रूल करेगी, लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर हम डीपर मीनिंग्स में जाते हैं, जिस तरह से कहा स्पिरिट के लिए, कहा कि वो स्पिरिट है, और तो उसको हमें इसको प्रूव करना है कि किस तरह से स्पिरिट है, क्या कर सकते हैं किससे, तो वो उससे क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म में रन करेगी। तो ये था 2 रीजंस वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। नाउ कंक्लूजन्स, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस। जो पहला सेट था प्रूडेंशियल। नाउ व्हाट इज प्रूडेंशियल, जहाँ पे सोच समझ के विचार करके उस कोई चीज़ों के बारे में जल्दी ही विचार नहीं करना, उसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, और उसके बाद वेरी केयरफुली उसके साथ रिजल्ट जो निकलता है उसे हम कहेंगे प्रूडेंशियल। सेकेंड वाला जो हमने देखा वो मोरल था। सो व्हाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन एम्फसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो हमने पहला वाला जो देखा था नंबर 1, ये वाला जो था वो प्रूडेंशियल कह दिया गया। अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं सोच समझ के तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। सेकेंड वाला जो देखा हमने, जो जिसमें कहा गया था स्पिरिट, है ना, स्पिरिट, दिस इज द सेकेंड वन। तो उसको क्या बताया, मोरल। क्यों बताया मोरल, क्योंकि वाइल प्रूडेंशियल जो है स्ट्रेस खत्म करता है, पावर शेयरिंग करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती, प्रॉब्लम जनता की खत्म हो गई। लेकिन दूसरा वाला जो है वो कहा मोरल, इसलिए कहा गया कि अगर हम लोग सही से काम करेंगे, सही से जिस तरह से स्पीड मान के चलेंगे, पावर शेयरिंग करेंगे, तो इम्पोर्टेंस जो है पावर प्रॉब्लम्स की कभी आएगी नहीं, कोई वॉयलेंस नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी अराइजेस, इसी तरह से। तो दोनों ही अपनी जगह में इम्पोर्टेंस है, प्रूडेंशियल एंड द मोरल, ठीक है। तो ये कंक्लूजन्स हो गया। तो ये हमारा टॉपिक जो था इसका कंप्लीट हुआ है, दैट वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीच में एक कार्टूनिस्ट का वापस एक आपकी पेजेस जो एनसीईआरटीज है जिनके पास, उसको वो मिल जाएगा, लेकिन जिनके पास एडवाइज़र बुक है उनके पास वो चीज़ें नहीं है, इसलिए वो हम लोग स्किप करते हैं। स्कूल्स में हम लोग वापस उसको डिस्कस करेंगे। द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग्स जो है ये नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट। टिल देन टेक केयर।